Assalamu alaikum. I'm Dr. Abdul Basit Rathore from the Forum of Building New Pakistan. As usual ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے فیمنزم. فیمنزم کو سب سے پہلے میں اس کو انتہائی بریف طریقے سے اس کی ڈیفینیشن آپ کے آگے رکھوں گا اور پھر اس ڈیفینیشن کو ہم آہستہ آہستہ اس کو اوپن اپ کرتے چلے جائیں گے. فیمنزم مینس ایکویلٹی آف جینڈرس. اس ڈیفینیشن میں ہم نے دو ورڈ یوز کیے ہیں، ایک جینڈرز کا اور ایک ایکویلٹی کا. ان کو ہم تھوڑا سا اوپن اپ کرتے ہیں. جینڈرز جب ہم کہتے ہیں تو جینڈر کی جو ٹرم ہے یہ اس سے مراد ہم اس کو ہم سیکس سے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب عورت اور مرد کو ہم سیکس کے حوالے سے لیں تو یہ ایک بایولوجیکل یا ایک فزیکل قسم کی ایک فیکچول ایک فیکٹ ہے. ٹھیک، لیکن فیمنزم اس فیکٹ کو ایز اے سیکس ڈیل نہیں کرتا، یہ اس کو ایز اے جینڈر ڈیل کرتا ہے. تو سیکس کا جینڈر سے کیا ڈفرینس ہے؟ جینڈر ایک ایسی ٹرم ہے جو ایک سوشل ٹرم ہے کہ سوسائٹی جو ہے ٹھیک وہ کون سے کریکٹرسٹک جو ہے یا کون سے ایٹریبیوٹس جو ہے وہ وابستہ کر رہی ہے عورت اور مرد کے ساتھ. ان کریکٹرسٹکس کے لحاظ سے ہم ان کو ایز اے جینڈر لیتے ہیں. فزیکل یا بایولوجیکل ڈفرینس کی بنیاد پر ہم ایڈریس نہیں کریں گے. ٹھیک، عورت جسمانی ساخت کی بنیاد پر فیمنزم کا موضوع نہیں ہے. عورت معاشرہ عورت کو جو سمجھ رہا ہے ایز اے جینڈر ناٹ ایز اے سیکس. ٹھیک، یہ ہے جینڈر کا فرق کہ معاشرہ جو عورت کو سمجھ رہا ہے وہ فیمنزم کا ٹاپک ہے. ٹھیک، آپ معاشرتی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد برابر نہیں ہیں. ٹھیک، ایز اے جینڈر برابر نہیں ہے، یہ اس کا. ٹھیک، ایز اے جینڈر ناٹ ایز اے سیکس. جینڈر کا مفہوم طے کرنے کے بعد کہ یہ معاشرہ جو اپروچ اپنی جو کریکٹرسٹکس اس کے ساتھ لگاتا ہے تو وہ جینڈر کہلاتا ہے. اب جینڈر کی ایکویلٹی کی طرف آتے ہیں کہ ایکویلٹی سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں. عورت اور مرد کی جب برابری کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس برابری اور ایکویلٹی کے پیچھے جو 3-4 شیڈز جو ہیں جو ایکویلٹی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اس کا ایک سوشل ایکویلٹی ہے، اس کی پولیٹیکل ایکویلٹی ہے، اس کی اکانومک ایکویلٹی ہے اور ایک پرسنل لیول پر ایک ایکویلٹی ہے. تو فیمنزم ان سب طرح کی اور جو اس کے شیڈ کے انڈر آتی ہیں ایکویلٹی، ان ایکویلٹیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے. ایکویلٹی اٹ سیلف جب بھی آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تبھی کر رہے ہوتے ہیں اگر ایکویلٹی کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایکسپلائٹیشنز جو ہے یہ بھی اس کے شیڈ کے انڈر آتا ہے کہ فیمنزم چونکہ یہ تھنک کرتی ہے کہ عورت کو ایز اے جینڈر ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے لہٰذا تبھی اس کی ایکویلٹی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. اس سٹرگل کی اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو اس کی ہسٹری کو ڈسکس کرنے کے لیے اس کو عموماً 4 فیزز میں یا 4 ویوز میں ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے. اس کو جو ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو 4 ویوز کی ڈویژن ہے یہ کوئی پرفیکٹ ڈویژن نہیں ہے. یہ جسٹ ایک لرننگ ٹول کے طور پر ایک ہیورسٹک وے میں جو ہے ٹھیک ہے اس کو یعنی، لیکن چونکہ یہ پریکٹیکل ہے اس لیے اس کو اڈاپٹ کیا. اٹ از پریکٹیکل بٹ ناٹ پرفیکٹ، یہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. اب اس کو ہم ان ویوز کو ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کی جو فرسٹ ویو لی جاتی ہے فیمنزم کی، یہ 1960s سے پہلے کا جو دور ہے یعنی کہ 19th سینچری اور ارلی 20th سینچری جو ہے اس میں یہ فال کرتی ہے. فرسٹ ویو جو ہے، فرسٹ ویو بیسیکلی ایک وہ کہہ لیں کہ ایک پولیٹیکل اویئرنیس جو فیمنزم نے ایک ڈیولپ کی تھی اور اس کا مین فوکس بھی کیا تھا کہ عورت کو ووٹ کا حق دیا جائے. تو اس مین اچیومنٹ کے گرد گھومتی رہی ہے اس کی جو فرسٹ ویو ہے. اس سے آنورڈ 1960s سے آنورڈ اور 1970s کے دور میں جو ہے اس کی سیکنڈ ویو شروع ہو جاتی ہے. سیکنڈ ویو کا جو فوکس تھا اس میں وہ دیکھا گیا کہ عورت کی جو ایک سوشل اور پرسنل شیڈز ہیں ایکویلٹی کے ان کو اچیو کیا جائے، کہ اس کو سوشل ایکویلٹی اور پرسنل ایکویلٹی کے جو مختلف پہلو تھے ان کو ساتھ لے کر چلا جائے اور اس کو حقوق ملے. اس میں اس کے آپ کہہ لیں کہ امپلائمنٹ کی ایکول اپرچونیٹیز، ایکول پے کی اپرچونیٹیز اس کو ملنی چاہیے. اس کا رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو آن پراپرٹی، ٹھیک، ہیلتھ کیئر کے رائٹس، بزنس کی ایکویلٹی کے رائٹس، ٹھیک،
اور पर्सनल लेवल पे उसको मैरिज की जो है उसमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, उसको उसके हेल्थ केयर के अंडर मैरिज में मैटरनिटी लीव के राइट्स उसको मिलने चाहिए। ये सारे उस फेज़ में सारे चलते हैं। राइट ऑफ अबॉर्शन, राइट टू अबॉर्ट, ठीक है, ये था उसका, ठीक है सारा। तो ये सारे सोशल और जो पर्सनल थे इक्वालिटी के जो इसको सेकंड वेव में इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा। देन कम्स द थर्ड वेव 1990s में जो ये शुरू हुई है। 1989 के लगभग जो है ये किम्बरले क्रैनशॉ अमेरिकन लॉ प्रोफेसर थी, उन्होंने इसमें एक इस थर्ड वेव में जो पोस्ट मॉडर्निज़म से इन्फ्लुएंस थी इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने एक बाकायदा एक कॉन्सेप्ट दिया था इंटरसेक्शनल फेमिनिज़म का, क्रैनशॉ ने। अब इंटरसेक्शनल फेमिनिज़म बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज़म से मुतासर था। पहली बात तो आप ये ज़हन में रखें। इंटरसेक्शनल फेमिनिज़म है क्या था? ये बेस करता था इंटरसेक्शनैलिटी के ऊपर। इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आपको कन्वे करता कि वो क्लियर हो जाए, और ये थर्ड वेव को बहुत कम डिस्कस किया जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे, ठीक। इंटरसेक्शनैलिटी में जो पीछे थीम है, जो सोच जो कार फरमा है, वो ये होती है कि किसी भी माशरे में अगर कोई इनइक्वालिटी है तो वो एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। देयर विल बी वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, और जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी हैं ये जब काम कर रही होती हैं तो अलग अलग नहीं करती, दे ऑपरेट टुगेदर। ये अपना असर इकट्ठा होकर डालती हैं, और जब ये इकट्ठा होकर सारी इनइक्वालिटीज़ मिल के असर डालती हैं तो फिर ये इनइक्वालिटी के और ऑपरेशन के फिनोमेना को एक्सेसरबेट कर देती है, बढ़ा देती हैं, फजूतर कर देती हैं, ठीक है। हालात को बद नहीं रहने देती, बद से बदतर और बदतर से बदतरीन की तरफ ले जाती हैं। लिहाजा अगर मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि माशरे में ये जो वेरियस फॉर्म से क्या मराद है इनइक्वालिटी के, को मुख्तलिफ जो माशरे में ग्रुप्स, तबकाती ग्रुप होते हैं जो बज़ाहिर अलग अलग नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये अलग अलग नहीं रहते। और ये ग्रुप्स मतलब मिसाल क्या, कास्ट को ले लें आप, क्लास को ले लें आप, ठीक है, चौधरी, कमी, ब्राह्मण, दलित, ठीक है, तो ये क्लासेस के डिफरेंसेस, रिलीजन के डिफरेंसेस, ये बज़ाहिर अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है, ठीक। आपकी आइडेंटिटी के, डिसेबिलिटीज़ के, ठीक है, ग्रुप्स हैं, ठीक है, लूला लंगड़ा होना, ठीक है, ठीक है, अंधा होना, ठीक है, तो ये ग्रुप्स जब अलग अलग नज़र आ रहे थे। लेकिन अगर आप किसी एक मसले को भी डिस्कस कर रहे हैं तो ये मसला हर ग्रुप में पाया जा रहा होगा, और लिहाजा जब ये हर ग्रुप में पाया तो ये ग्रुप्स मिल के उस मसले को बढ़ाते चले जाते हैं। मिसाल क्या, लेट्स से कि औरत होना, फेमिनिज़म कि औरत को एज एक मसले के तौर पर अगर हम लेके, औरत होना माशरे में इक्वालिटी एंजॉय नहीं कर रहा औरत होना जो है, तो लिहाजा ये एक प्रॉब्लम है, तो ये एक दायरा बन गया। इंटरसेक्शनलिज्म ये कहता है कि अगर एक दायरा औरत का है तो एक दायरा क्लास का चल रहा है गोरों और कालों का, लेट से, तो एक औरत अगर औरत होने के अलावा ब्लैक भी है तो ये दोनों दायरे, इनकी जो मार्जिनल बाउंड्रीज हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एनहांस कर देंगी। औरत होने से इसको जो मसाइल दरपेश हैं, ब्लैक होने की वजह से उन मसाइल में इजाफा हो जाएगा। और अगर वो बिल्कुल एक लोअर कम्युनिटी से भी बिलोंग कर रही है, ठीक है, कि वो हमारे इंडो पाक के माशरे में से दलित है या चौधरी नहीं है, कमी क्लास से बिलोंग कर रही है, तो एक और दायरा उसके मसाइल में एंटर हो गया। तो ये इंटरसेक्शनल जो था उसमें फेमिनिज़म वो इसको इस तरह देखता था। यानी कि थीम पीछे क्या थी कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी जो हैं वो टुगेदरली इकट्ठी होकर काम करती हैं, ऑपरेट करती हैं, और वो मसाइल को एक्सेसरबेट कर देती हैं। लिहाजा इसी थॉट के तहत अप्रोच क्या वजह की गई, इंटरसेक्शनल अप्रोच क्या थी, जो किम्बरले क्रैनशॉ जो प्रोफेसर थी, उन्होंने जो कहा कि चूँकि मसाइल एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लिहाजा अप्रोच भी ऐसी होनी चाहिए कि दैट अप्रोच मस्ट टेक इनटू अकाउंट ऑल एस्पेक्ट्स, कि वो इन सारे एस्पेक्ट्स को अपने सामने रखे। मसले को सिर्फ एक ही एंगल से ना देखा जाए सीधा सीधा, बल्कि वो उस मसले से मुतासरा शख्स को जितने भी एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से भी होने की वजह से को फेस करने पड़े, उनको भी इंक्लूड किया जाए सिस्टम में। उस मसले के ऊपर जितने भी दूसरे दायरे, तबकाती दायरों के असरात जो उस पर एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं और उसके ऑपरेशन में इजाफा कर रहे हैं, उनको भी देखा जाए। तो टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द एस्पेक्ट्स, ये इसकी
इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म की अप्रोच थी, पीछे थॉट और अब उसकी अप्रोच उसके हिसाब से रखी गई। तो ये और उनका बिलीव था कि अगर आप ये अप्रोच रखेंगे देन यू कैन रीच टू अ रियल सोल्यूशन, कि ये उनको एक रियल सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म के अंदर जो है। तो ये इसी से मुतासर होकर फिर जो चूँकि ये मुख्तलिफ ग्रुप्स दायरों को डील कर रही थी, तो इसके असरात सबसे ज़्यादा जो पड़े, जिस तरह पोस्ट मॉडर्निज्म के हम पहले डिस्कस जो पढ़े थे वो क्वियर थ्योरी पर और LGBT जो है जो तहरीकें थी उन पर। क्वियर थ्योरी और LGBT डेफिनेटली यानी कि ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन है जो कि नॉर्म से या नॉर्मल ओरिएंटेशन से हटी हुई ओरिएंटेशन को हम अभी तक जो है यानी कि इसको जो लिया जाता है वो, तो इसके असरात उस पर भी पड़े थे सारे के सारे। देन कम्स द फोर्थ वेव जो लेटेस्ट फेज़ है, ये 2012 के बाद से ये चल रही है। इस फोर्थ वेव का जो मेन फोकस है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन जो है, ये इसका मेन फोकस है कि औरतों की जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, ठीक है, उसको एड्रेस किया जाए। इनके फोर्थ वेव में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो फोकस है, इसके पीछे जो मेन थॉट है वो क्या है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को औरतें डिलिबरेटली एक्सपोज करें, ठीक है। कैसे करें? ऑन द मीडिया। एक्सपोज करने का जो फिनोमिनन है, ठीक है, एक्सपोजिंग द वुमेन हु आर हरेस्ड सेक्सुअली, ठीक है, ठीक, और डिलिबरेटली, ठीक है, ये इसका मेन मोटो था कि मीडिया के ऊपर इसको सामने लाया जाए। और इसका सबसे ज़्यादा जो है जो हमें असर मिलता है, इसका जो एक इसका जो मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट अगर आप कहें तो वो जो तहरीक मी टू की जो तहरीक चल रही है मीडिया के ऊपर, कि जिसमें फ़ीमेल्स अपने अपने सेक्सुअल हरासमेंट के जो भी उनके साथ हैपनिंग्स हुई हैं उनको वो डिलिबरेटली बयान करती हैं, उनको एक्सपोज करती हैं, ठीक। तो मी टू एक बड़ी सेलिएंट किस्म की तहरीक जो है इस फोर्थ वेव के अंडर जो है वो चल रही है इसमें। और इसका आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट नज़र आएगा क्योंकि ये मीडिया पर चलाई जाती है, तो मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, एक्ट्रेसेस हैं या एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से जो फीमेल्स वाबस्ता हैं, वो ज़्यादा बोल्डली इसके ऊपर अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको एक्सपोज करती हैं इसको। और ये आज की सबसे जो तवाना किस्म की तहरीक जो फोर्थ वेव में चल रही है वो यही चल रही है। इवन कि आज के अखबार में भी सुबह मैं देख रहा था तो वो हमारे जो ये फिल्म एक्ट्रेस हैं उनकी तरफ से एक बाकायदा वो एक उनका एक रिव्यू छापा गया हुआ था जिसमें बताया गया था कि वो माशरे में क्या क्या चेंजेस चाहती हैं, और उनमें वो सबसे टॉप पर यही था कि ये उसकी जो हैरेसमेंट के जो हैं इवेंट्स, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे इसको कटेल किया जाए इन सब चीज़ों को। दिस वाज ऑल अबाउट अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द 4 वेव्स। मैं दोबारा रिमाइंड करूँगा कि ये वेव्स की जो है ये प्रैक्टिकल तो है, एक परफेक्ट डिफिजन नहीं है, ये लर्निंग टूल के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आखिर पे चूँकि हमारे आज के टॉपिक में फेमिनिज्म पर बहुत सी वीडियोस बनती हैं, लेकिन हमने इसमें जो ख़ास टच रखा हुआ था कि इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म को हम थोड़ा सा एलेबोरेट करें ताकि थर्ड वेव का कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों के में क्लियर हो जाए। तो अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए हम उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगा। इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म पर एतराज़ात भी किए जाते हैं, ठीक है, फेमिनिस्ट की तरफ से। जो फेमिनिस्ट जो हैं थॉट के पीपल जो हैं वो उस पर बाकायदा एतराज़ करते हैं कि इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म जो है वो थोड़ी सी अपनी अप्रोच में डी ट्रैक भी हो जाती है, कि फेमिनिस्ट समझते हैं कि हमारी अप्रोच चूँकि डायरेक्टली इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स को डील करती है और उसमें स्पेशली कॉन्सेंट्रेट हम फीमेल्स पे करते हैं, वुमेन्स पे करते हैं, विमेन पे करते हैं, तो जो इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म है ये दूसरे दायरों को भी टच करने लग पड़ता है। ये सोसाइटी के अंदर सिर्फ वुमेन को टच करने के अलावा क्लास सिस्टम को टच करता है, कास्ट सिस्टम को टच करता है, रिलीजन को टच करता है, और समटाइम इट हैपन्स कि वो अपने इशू से हटकर उस दूसरे दायरों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तो एक डी ट्रैक होने का अंसर इसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो ये इस पर एक इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म के ऊपर एक एतराज़ भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन बहरहाल ये एक अप्रोच मौजूद है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द फेमिनिज्म, ठीक है। आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल रिक्वेस्ट फॉर द सब्सक्रिप्शन कि आप सब्सक्राइब करें लाजमी,
تاکہ علی ویس وانٹ اس چینل کو اچھے طریقے سے مزید جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نئی ویڈیوز بنا کے پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. I should fuck her in the Benz.